Okay, so back to greenhouse farming. I'm repeating again if somebody has missed along with the meanings. Okay, countries with a cold climate receive less heat from the sun. This hampers the growth. Hampers meaning yes, it obstructs the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. Accumulate means yes. Adequate meaning enough. So they have to make an arrangement to collect enough heat of the sun. The roof is made of either glass or cloth. Most probably it should be green in color. Okay? To allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside. Penetrate मतलब अंदर जाना. Sustain means वहां पर रहना. जैसे मैंने आपको पहले बताया था the sun rays go inside and they stay. फिर वापस जब इवनिंग हो जाती है तो हीट कम नहीं होता, हीट उसी में मेंटेन रहता है. ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड पेनिट्रेट. यस, स्टोर होना. अंडरलाइन द वर्ड पेनिट्रेट मीनिंग गो. एंड सस्टेन मीन्स टू कीप. Sustain means to keep. So, let's read the sentence again. The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to go and keep the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse farming. Check the spelling of house. It should be House. Right? So this process of farming is known as greenhouse farming, where sunlight is taken inside the house and then it maintains inside itself and helps the plants to grow. Any doubts in greenhouse farming? Anybody? Okay. Now in the next page again you can see the picture given to you. And the title is Changing Climate. Now if you see the picture carefully, you can see in the first picture there are so many cracks in the land. दिख रहा है? So nowadays the rainfall has decreased so that in many areas the land has become totally dry. Okay, there are cracks. और उसी में लास्ट पिक्चर देखो, you can see the flood conditions. बड़ी बड़ी कार्स भी पानी में डूब रही है. So these two pictures are opposite. The places where they used to have adequate rainfall, there is a drought-like condition. And there are other places where are flood conditions. And this is not the picture of only India or only Gujarat. This is faced by whole of the world. फिर एक जगह पर आप देख सकते हो there is totally desert area. अदर उसी के नीचे you can see there is dense forest. कहीं कहीं पर पूरा डेजर्ट हो चुका है, कहीं पर फॉरेस्ट आर फ्लरिशिंग वेरी नाइसली. फिर एक जगह पर आप देख सकते हो लॉट ऑफ ग्रीनरी, देयर इज लॉट ऑफ स्नो. Right? And see the sentence given below. Write one sentence about each of the pictures given above in your notebook. Actually activity करना नहीं है हमें. We just have to study the picture, and from the picture you can say that what is the weather or what is the climate of this particular picture. Yes or no? Yes. Now the topic which we learned, which we discussed yesterday itself, global warming. What is the meaning of globe? Globe means yes, the whole earth. Globe means the earth. Warming matlab, what do you mean by the word warm? Yes. To heat up, right? So title is global warming. मतलब whole of the earth is getting heated up day by day, year by year. पहले जितना भी टेम्परेचर था उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इन होल ऑफ द अर्थ, दैट इज होल ऑफ द ग्लोब. इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है. तो ये कुछ कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में इतना इंक्रीज हो रहे हैं that overall because of the presence of these gases the atmosphere is becoming hotter and hotter. Do you understand what is global warming? Yes.
बिकॉज ट्रीज कट करने से एक ही प्रॉब्लम होता है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड increases heat automatically increases. It is a rule. See the definition given to us. Global warming refers to an unequal and continual rise in the average temperature. Unequal, कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत कम हो जाता है, but continuous development rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases. Now greenhouse farming और greenhouse gases में फर्क है. ग्रीन फार्मिंग इज अ यूजफुल एक्टिविटी. ग्रीन हाउस फार्मिंग एक यूजफुल एक्टिविटी है जहां पर वी कैन डेवलप प्लांट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट और इन द एब्सेंस ऑफ मोर सनलाइट. इन ग्रीन हाउस गैसेस जो है दैट आर हार्मफुल गैसेस. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन ग्रीन हाउस फार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? यस, मैथिल, धर्मा, ध्रुव, ध्रुवी, भद्रेश, सबको मैं निकाल रही हूँ. ओके, सो ग्रीन हाउस फार्मिंग एक अच्छी चीज है, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस आर हार्मफुल गैसेस. एंड व्हेन दीज हार्मफुल गैसेस स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ओके, इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप infrared radiation, that is the UV rays, ultraviolet rays. Entrap means to absorb. Underline the word entrap. And that is the meaning absorb. एटमॉस्फेयर में जब हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है and it results into lot of heat. Okay, this effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to global warming. Check the spelling of warming. WARMING होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर दो. Have you done? Okay, now you can see a very nice picture given to us. नीचे देखो, एक है डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को कट करके जला रहे हैं. Then there is a CFC gas. ये CFC is a very harmful gas. अभी हम आगे next page पे पढ़ने वाले हैं. Then yes, then you can see the vehicles emitting smoke. Then you can see the chimneys of the factories. You can see the this inverters जिससे electricity produce होती है. And due to this, you can see there are clouds formed. White color के clouds दिख रहे हैं atmosphere में. Yes, now what happens that because of these clouds, the sun rays is refracted. मतलब sunlight जो है वो पूरी अर्थ तक नहीं पहुंच सकती, ये स्मोक में वो बेचारी एंट्रैप हो जाती है, फंस जाती है. And so we do not get the pure gas or pure oxygen to breathe in. And this is the main reason that greenhouse effect is, you can say, spoiling the life of not only human beings but all of the living beings, all the creatures on the earth. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमें नुकसान नहीं करती, all the living organisms, whether they are animals, plants, birds, insects, whatever it is, all are affected because of the global warming. So can you understand the picture properly? Yes. Okay. Turn the page. अभी हमें दिया है न्यूज फ्रॉम द न्यूज़पेपर. लास्ट थोड़े कुछ 15-20 सालों में न्यूज़पेपर में ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड क्या क्या न्यूज आते हैं. वी हैव बीन गिवन सम ऑफ द हेडलाइंस एंड दीज हेडलाइंस आर टेकन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या न्यूज आए हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सी नंबर 1, average increase of 5 degrees Celsius in temperature in West Europe heat experience. Now Europe is a country which lies nearer to the North Pole. North Pole के पास कितनी ठंडी होती है ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, है ना. और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज दैट स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. अब उसी यूरोप में 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. मतलब जनरली if the temperature is 6 degree, now it is up to 11 degrees.
समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल इन यूरोप द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. देन देयर इज वन न्यूज ऑफ 2009. 14 degrees Celsius temperature in Darjeeling reaches maximum to 28 degrees. Darjeeling is a hill station. You might have heard the name. राइट. हिल स्टेशन में ज्यादातर ठंडक होती है. 14 डिग्रीज के अराउंड टेम्परेचर होता था. बट इन 2009 द टेम्परेचर रीच्ड अप टू 28 डिग्रीज. मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया टेम्परेचर. तो हिल स्टेशन जैसा तो कुछ रहा ही नहीं, वहां पर भी गर्मी. ओके. सीधा थर्ड लाइन, स्नोफॉल इन डेजर्ट. ये सुनने में कैसा लगता है ना? यस. डेजर्ट में भी इतना टेम्परेचर लो हो गया दैट व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग तो वो रेन वाटर जो फ्रीज होता है एंड इट फॉल्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल. तब जस्ट इमेजिन करो कि हमने एटमॉस्फेयर को कितना खराब करके रख दिया है. ओके. सी द नेक्स्ट हेडलाइन. मुंबई रिसीव्ड 942 ml रेन इन वन डे इन 2005. मुंबई के बारे में हम लोग एवरी ईयर सुनते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन. There is lot of flood in Mumbai experience nowadays. इतनी बारिश नहीं होती थी. But in 2005 it reached up to 942, which is a very big figure. Okay. See the next headline. Again in 2005 itself. Increase in temperature in Australia. Australia has lot of water bodies around. बट वहां पर भी बिकॉज इवन दो देयर इज वाटर बॉडी. अब वाटर बॉडीज के आजू बाजू सी है, ओशन है, तो वहां टेम्परेचर हाई नहीं होता. बट देन ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया इट हैज बीन सीन. देन सुंदरवन इज सबमर्जिंग. सुंदरवन इज फॉरेस्ट एरिया इन वेस्ट बंगाल. अगर आपने सुना है तो. जयती आई कैन नॉट सी यू. ध्रुवराज आई. यस, हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था लास्ट ईयर. साची. ओके. तो सुंदरवन इज अ फॉरेस्ट एरिया इन वेस्ट बंगाल. अब आपको पता होगा कि बंगाल जो है इट इज नियर द बे ऑफ बंगाल, है ना. तो बे ऑफ बंगाल में पानी का लेवल इतना ऊपर आ रहा है दैट नाउ दैट वाटर इज एंटरिंग द सुंदरवन फॉरेस्ट. सबमर्ज मतलब डूब जाना, टू सिंक. ओके. सबमर्ज. अंडरलाइन द वर्ड सबमर्ज and write the meaning to sink. Sink तो पता है ना आपको, floating and sinking. डूब जाना. तो डूब गया नहीं है, डूब रहा है. सुंदरवन का बहुत सारा सरफेस एरिया है. इट इज देयर द वाटर इज कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. ओके. देन सी द नेक्स्ट हेडलाइन. Reduction of 5 kilometers in Khumbu snow river of Nepal. You know what is a snow river? Yes, a frozen river. Frozen river पता है ना? So in Nepal there was a frozen river. The name of the river was Khumbu river. उसमें 5 kilometers water has decreased. It has been absorbed. क्योंकि नेपाल is nearer to the Himalayas. तो हिमालयस के पास आपको पता है कि कितनी ठंडी होती है, राइट. लेकिन वहां पर टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि खुम्बू रिवर का पानी इवापोरेट होने लगा. यू नो इवापोरेशन टेक्स प्लेस इन सनलाइट. यस और नो, राइट. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर देर इज लॉट ऑफ इवापोरेशन इन दिस रिवर. 5 किलोमीटर तक रिवर छोटी हो गई, पानी कम होने लगा. एंड इट इज नाउ नॉट अ स्नो रिवर, इट इज जस्ट अ नॉर्मल वाटर रिवर नाउ. ओके. देन आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 square kilometers melts within 35 days in Antarctica. If you have heard about Antarctica, there is no human population possible over there. आप वहां घूमने जाओ, रिसर्च करने जाओ, देखने जाओ, बट यू कैनॉट स्टे देयर परमानेंटली इन एंटार्क्टिका. वेदर देयर इज वेरी कोल्ड एंड ह्यूमन हैबिटेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके. क्योंकि वहां पर इतनी बर्फ है, यू कैनॉट लिव ओवर देयर. अब ऐसे एरिया में जस्ट इमेजिन आइस कैप, पूरे वो आइस की टोपी जैसा होता है. तो 3000 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया का आइस मेल्ट हो गया जस्ट विद इन 1 month. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्क्वायर किलोमीटर?
I'll just explain. Suppose if you are traveling, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो A से B तक and the distance is 1 kilometer. ठीक है, फिर आप B से C तक जाओगे, again the distance is 1 kilometer. C से D तक जाओगे, again the distance is 1. And D से वापस A जाओगे 1 किलोमीटर. तो जब आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो इन ऑल द 4 डायरेक्शन, ऐसे भी जाते हो, ऐसे भी जाते हो, ऐसे भी जाते हो और ऐसे भी जाते हो, देन दिस इज नोन एज 1 स्क्वायर किलोमीटर. नाउ कैन यू इमेजिन द डिस्टेंस? व्हाट इज 1 स्क्वायर किलोमीटर? कितना होता है? यस, तो आप चारों डायरेक्शन में जब 1-1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो उस एरिया को बोलते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर. ये पूरा एरिया है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर का है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स. सो नाउ कैन यू इमेजिन द डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस होगा वो? यस, उतना आइस इट हैज मेल्टेड इन एंटार्क्टिका जस्ट इन 1 month. 35 days मतलब 1 month plus 5 days more. तो कैन यू इमेजिन हाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे? यस, एंड द सोर्सेज, लास्ट हेडलाइन क्या है? सोर्सेज ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप. Rivers, ponds, lakes, everything is drying up day by day because the temperature is increasing a lot. So from all these news headlines you can come to know that हम लोग कितना खतरे में है ना? Okay, so from all these headlines, from all these points, हमें ये पता चला कि the temperature on the earth is increasing day by day. Global warming बढ़ रहा है day by day. Yes, why is it increasing? इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो क्यों रहा है? That is given in the next topic. What is the title in the next topic? ये हीटिंग इतना इंक्रीज हो क्यों रहा है? Let us see. The greenhouse gases. Greenhouse gases मतलब all the harmful gases. जितने भी गैसेस अगर हम ब्रीथ करें हमारे बॉडी में जाते हैं और हमें हार्म करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल जो आपको पता है. ओके, आई कैन नॉट सी हीर एंड ध्रुवी. So the greenhouse gases means the harmful gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, which is known as CFC, जिसका भी हमने पिक्चर देखा. अब CFC कहाँ से आता है वो भी हम पढ़ने वाले, डोंट वरी. एंड हेलोकार्बन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये सभी गैसेस, ऑल दीज गैसेस व्हेन दे इंक्रीज इन द एटमोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीजेस. राइट, तो अभी ये गैसेस के नाम सुनकर डर मत जाना. कौन से गैसेस कहाँ से आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, सो नो टेंशन. ओके, the increase in the proportion of these gases leads to the problem of global warming and climate changes. Obviously जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो climate will change. Yes or no? Okay. Now see, there is one sentence given to us in bold line. Increase in the temperature by 0.6 डिग्री सेल्सियस in last 100 years. अगर हम पूरे अर्थ के टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे, पूरा अर्थ, कहीं पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कहीं पर कम हुआ है. बट इफ वी सी द टोटल ऑफ लास्ट 100 years, then 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंक्रीज. अब आपको क्या लगता है 0.6 कुछ ज्यादा इंक्रीज बोल सकते हैं? 0.6 मतलब अब अगर लास्ट ईयर 40 डिग्री था टेम्परेचर तो इस बार वो 40.6 है, तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, खास नहीं पड़ता है ना. बट दिस इज ऑफ द लास्ट 100 years. अभी नेक्स्ट कमिंग 100 years का टेम्परेचर देखेंगे तो इट माइट बी 10 डिग्रीज 12 डिग्रीज वॉट एवर. 5 डिग्रीज है तो भी इट इज मोर. समझ में आ रहा है?